Hello friends, welcome again to Real Homemaking. In today's video, I'm sharing with you some of my kitchen essentials. Cooking is also an art, so you cannot cook properly if you don't have proper tools, right? So in today's video, I'll be sharing all the products that I use in my kitchen and which are almost essential in any Indian kitchen. And before starting this video, I just want to add a disclaimer here that this is not at all a sponsored video. Secondly, all the products that I'll be showing are almost 5 years old now, because all these products are being bought by my husband when he moved to US 5 years back, and since last 3 years I'm also using the same products. So yeah, with this, let's begin. So the first product that is very much essential in any kitchen is a microwave. I have this microwave from Revell. It is 700 watts, and yeah, it is 700 watts, and we are using this since last 5 years. It is very neat and clean from inside. If you take good care of your products, they will respect you, right? So yeah, I clean it up every time, and as I have shown in my other vlog as well, I keep a kitchen towel inside this plate so that the plate doesn't get destroyed a lot. So the next product is this chopper. This is from company Ninja. It is very nice. ये देखिए, इसमें बड़ा सा कंटेनर आता है और इसमें डबल लेयर एक ब्लेड आती है. So you can chop onions in this. Onions तो within seconds इसमें बिल्कुल फाइन चॉप हो जाती हैं. और कभी अगर आपको almonds चॉप करने हैं या cashews चॉप करने हैं तो मैं इसी में ही चॉप करती हूँ. I really love this one. And this kitchen aid really reduces my cooking time. Next is this blender. This is from a company Oyster, and this is a huge jar that comes along with this blender. And इसमें दो speeds है, low और high, and इसमें बहुत सारे options हैं जैसे कि stir है, mince है, grate, beat, puree, blend, shred, cream. So whatever function you want to perform with this, you can easily do it. And इस blender की मैं एक खास बात दिखाती हूँ. इस ब्लेंडर को आप नीचे से इस तरीके से खोल सकते हैं. सो ये आपका अलग हो जाएगा और ये प्लेट आपकी अलग हो जाएगी. तो आप इसे अच्छे से नीचे से भी खोल के क्लीन कर सकते हैं. ये बात इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. आई यूज़ दिस ब्लेंडर टू ग्राइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक for grinding dry spices, to making purees, everything. I just use this blender to do every job that I need to do in my kitchen. तो बस आप इसको ऐसे नीचे से खोल के क्लीन कर सकते हैं और फिर से आप इसको ऐसे लगा दें तो आपका जार जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम प्योरी वगैरह बनाते हैं तो नीचे कुछ स्टक रह जाता है और हमें होता है कि गंदा रह गया है हमारा ब्लेंडर नीचे से. बट इसके साथ ऐसा नहीं होता. आप इसे आराम से नीचे से खोल के साफ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस टोस्टर. इट इज़ अगेन फ्रॉम अ ब्रांड रिवेल, और इसकी कंडीशन देखिए. इसे पूरे 5 साल हो चुके हैं एंड इट स्टिल लुक्स लाइक न्यू वन, बिकॉज इसे मैं क्लीन करती रहती हूँ जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ. और वैसे ये बहुत ही रेयरली हमारे घर में यूज़ होता है. जब भी हमें टोस्टेड ब्रेड खानी होती है बस तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ. एंड येस, आई डू मेक तंदूरी रोटीज इन दिस. इफ़ यू वांट टू नो हाउ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल डेफिनेटली शूट दैट वीडियो फॉर यू. सो या, this toaster I just use for toasting the bread and for making tandoori rotis. Next product is the sandwich maker. It is again from a brand Revell. We got all the stuff from Walmart, and I think this Revell brand is a known brand at Walmart. It is the cheapest and the best one, I can say that. So it is a griller. As you can see, it has a grilling plate both above and at the base. So जब भी मुझे ग्रिल्ड सैंडविचेस बनानी होती हैं तो मैं इस पे बनाती हूँ. नेक्स्ट इज दिस बीटर. दिस इज अगेन फ्रॉम अ रिवेल ब्रांड, एंड this we got as our wedding gift from our friends, and I know my friend must be watching this video. So yeah, this is our gift, and हम ये बहुत ही rarely use करते हैं whenever we have to make cakes, and mostly ये मेरे husband use करते हैं जब भी वो ऑमलेट बनाते हैं. मैं तो ऐसे ही हाथ से फेंटती हूँ, but he uses this one to make his omelette. So yeah, this is again from a Revell, and you can easily find it at Walmart. I don't know from where my friend got this one. And since my kitchen is really small, I keep all my appliances organized here in this rack, which is next to the pantry. Now let's talk about some of the pots and pans that I use for cooking. Actually जो भी कुकिंग में यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो सब नॉन स्टिक हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ इंडक्शन गैस होती है. सो नॉन स्टिक बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो जो भी मैं नॉन स्टिक आपको दिखा रही हूँ वो बहुत ही पुराने ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1 साल पुराने मैक्सिमम है मेरे पास.
So this is one pot that I use for making all my curries. You must have seen again in a lot of my videos. I got this one around 2 months back from a Chinese store, and this one is from Ace Cook. So the next pot is this one. This is a huge pot, and I don't know the brand of this one. Yeah, I ordered this a year ago from Amazon. I use this to make my सब्जी, बट सिंस इट इज़ वेरी बिग तो मैं इसको थोड़ा सा कम निकालती हूँ. एंड अगेन दिस ह्यूज पॉट आई हैव, दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड टेरा मॉन्टीना, एंड आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम अमेजॉन अगेन अ ईयर बैक. आई ऑर्डर्ड दीज टू टुगेदर. सो ये मैं मोस्टली पहले करीज वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती थी, बट नाउ आई जस्ट यूज़ दिस टू बॉयल मिल्क फॉर my dahi and paneer. Next very much important thing in an Indian kitchen is this kadhai. This one is from a brand Futura, and this is 3 liters. तो ये कढ़ाई हम तब यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ भी फ्राई करना है, जैसे कि पूरियाँ बनानी है या पकौड़े वगैरह बनाने हैं. तो मेरे घर में ये थोड़ी कम यूज़ होती है बिकॉज मैं फ्राइड फूड थोड़ा कम बनाती हूँ, बट येस दिस इज़ अ मस्ट हैव इन एन इंडियन किचन. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस प्रेशर कुकर. दिस इज़ from a brand Prestige, and this is again a 3 liter pressure cooker. Next very much important thing are these tawas. I have 2 of them. One is a smaller one and one is a bigger one. So ये छोटा वाला मैं यूज़ करती हूँ to make chapatis and parathas. So ये मेरा daily use होता है, and this bigger one I use to make uttapams and dosas. And both of these are from a brand Faberware, and I ordered both of them from Amazon. Next are these bhagoni. तो मेरे पास 2 साइज़ में, एक छोटा है और एक बड़ा. इसमें मैं दही जमाती हूँ, और ये मैं सामान वगैरह रखने के लिए, फ्रिज में कोई भी चीज़ रखनी है तो मैं इसके लिए यूज़ कर लेती हूँ. और दिस इज़ वन बिग मिक्सिंग बाउल. तो मैं जो भी मिक्स करना है सामान या कुछ भी, जैसे कभी ज़्यादा सब्ज़ी बनी है तो वो सब मैं इसमें रखती हूँ. नेक्स्ट इज़ दिस परात. और इंडियन किचन में परात का होना तो मस्ट है बिकॉज हम लोग हर रोज़ डो बनाते हैं, तो परात तो मस्ट है. एंड नेक्स्ट इज दिस टी पैन. दिस इज अगेन फ्रॉम अ ब्रांड फ्यूचुरा, एंड ये 1 लीटर का है. आई गॉट दिस फ्रॉम इंडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली अनिरुद्ध ने ये तोड़ दिया था, तो इसका हैंडल नहीं है अभी मेरे पास, बट येस आई डू स्टिल यूज इट. नेक्स्ट है ये कैसरोल, एंड दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड मिल्टन. एंड कैसरोल तो सभी के घर में यूज़ होता ही है रोटी पराठे वगैरह बना के रखने के लिए. नेक्स्ट दिस स्मॉल तवा आई हैव फॉर ऑमलेट, एंड आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम इंडिया लास्ट ईयर, एंड इसका कोई ब्रांड तो मुझे दिख नहीं रहा है. आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 200 रुपीज़ फ्रॉम इंडिया. तो ये बहुत ही अच्छा है. सुबह के टाइम में अक्सर अपने हस्बैंड को एग पोर्च या ऑमलेट जब भी बनाती हूँ तो मैं इसी पैन में बनाती हूँ. नेक्स्ट मेरे पास ये 2 स्ट्रेनर हैं. ये एक बड़ा स्ट्रेनर है और एक छोटा. इसके होल्स थोड़े से बड़े हैं, तो ये कभी कभी पास्ता वगैरह स्ट्रेन करने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, और इसके होल्स थोड़े फाइन हैं, और इसको मैं हर चीज़ स्ट्रेन करने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि राइस हो गया या जो भी मुझे कुछ स्ट्रेन करना है मैं इसे यूज़ करती हूँ. या वेजिटेबल्स मुझे वॉश करनी है तो आई जस्ट पुट माई वेजिटेबल्स इनटू दिस एंड आई वॉश दिस. एंड आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम डॉलर ट्री जस्ट फॉर $1, एंड ये इंडिया का है. सो नेक्स्ट इज दिस स्टीमर. ये माइक्रोवेव सेफ स्टीमर है, तो इसका इस तरीके से है. इसमें पानी डालो और ये लगा दो, और इसको मैं यूज़ करती हूँ मोमोज वगैरह बनाने के लिए. आप इसे माइक्रोवेव में रख के कुछ भी स्टीम कर सकते हैं. नेक्स्ट आर दीज प्लास्टिक कंटेनर्स. ये प्लास्टिक कंटेनर्स कुछ मेरे पास रबरमेड ब्रांड के हैं और कुछ बेटी क्रॉकर ब्रांड के हैं. एंड these come very handy whenever you have to keep any stuff, and these blue ones are from Rubbermaid, and I use this to give lunch box to my husband. तो ये एयरटाइट है और इनका सीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो इसमें मैं कभी दही, फ्रूट्स या फिर जो भी मुझे अपने हस्बैंड को देना होता है, सब्ज़ी वगैरह, मैं इसमें डाल कर देती हूँ. एंड ये जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, ये आप कभी भी थ्रो ना करें बिकॉज यू कैन री यूज़ दैम. जो भी इसमें सामान आता है जब वो ख़त्म हो जाता है, यू कैन जस्ट वॉश देम एंड कीप देम इन योर पैंट्री एंड यू कैन री यूज़ देम. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ. ये एक प्लास्टिक का डब्बा है फ्रॉम ट्रॉपिकाना. ये इंडिया से मेरे पास आया था, इसमें कुछ सामान डल के, एंड इट इज़ बिग इनफ टू स्टोर राइस. तो इसमें मैंने राइस स्टोर किया हुआ है अपना. ऐसे ही एक और ये बड़ा डब्बा है जो कि आई डोंट नो कहाँ से आया था, पता नहीं ये यहाँ का है या इंडिया से आया था. तो इसमें मैंने सारे अपने मखाने स्टोर किए हुए हैं.
और इसी तरीके से ये एक एयर टाइट डब्बा है जो लास्ट ईयर जब इंडिया से मेरे पास मेरी मदर इन लॉ आई थी वो लेकर आई थी इसे, तो अभी मैंने इसमें अपने मल्टीग्रेन चिप्स स्टोर कर रखे हैं। आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि इस टाइप के प्लास्टिक कंटेनर्स मैंने अपने घर में पूरे घर में यूज़ किए हुए हैं। देखिए जैसे कि ये सालसा का एक डब्बा है जो जिसमें सालसा आती है और इसमें मैं कुछ भी स्टोर कर सकते हैं आप। इसमें मैंने जैसे पंपकिन सीड स्टोर किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास डब्बे हैं जिसमें मैंने कुछ मसाला स्टोर किया हुआ है। एक छोटे से डब्बे में मैंने गुड़ स्टोर किया हुआ है। और देखिए ये छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, ये सौंफ की डब्बियाँ हैं। आई गॉट दिस वन फ्रॉम इंडिया लास्ट ईयर एंड जब सौंफ खत्म हो गई तो मैंने इन्हें सबको वॉश करके इसमें अपने डिफरेंट मसाले भर लिए, जैसे कि पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, चना मसाला। सिमिलरली देखिए ये अमूल घी का डब्बा है और इसे मैंने जब घी खत्म हो गया तो वॉश करके इसे मैंने यूज़ किया है स्टोर करने के लिए अपने किडनी बीन्स। नाउ लेट मी शो यू सम ऑफ माई लैडल्स, स्पैचुलास, ग्रेटर्स। सो द टू टाइप ऑफ ग्रेटर्स दैट आई हैव इज दिस वन। एक ये मेरे पास बड़ा ग्रेटर है और एक ये छोटा ग्रेटर है। ये बेसिकली मैं अदरक और गार्लिक वगैरह ग्रेट करने के लिए यूज़ करती हूँ एंड दिस ग्रेटर आई यूज़ टू ग्रेट एवरीथिंग लाइक चीज़, पनीर, आलू वगैरह अगर जब ग्रेट करना है तो सब कुछ ग्रेट करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। Next is this brush which I use to grease the pan. I got this from Dollar Tree. It is from a brand Betty Crocker. So yeah, this is a cheap one and it is serving my purpose in a great way. Next very important thing in any kitchen is this scissor. So ये एक मेरे पास नॉर्मल सीजर है, कभी भी कुछ भी काटना है किचन में तो सीजर रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक सीजर है, दिस इज़ हर्ब कटिंग सीजर। इसमें देखिए ये चार ब्लेड्स हैं, नो सॉरी 5 ब्लेड्स हैं। तो ये सीजर मैं यूज़ करती हूँ फाइन चॉपिंग करने के लिए, ग्रीन चिलीज़ की, या फिर जब भी मुझे अदरक का जूलियंस बनाना है। सो आई यूज़ दिस सीजर टू डू दैट. So I got this one from Amazon last year. This is from a brand Utopia Kitchen. So I'll link it down. And now let's move on to some of the ladles that I have. So एक ये है, ये कड़छी टाइप है मेरे पास, और ये तो नॉर्मल चिमटा है जो रोटी वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये एक चिमटा है जिसे मैं पराठा वगैरह सेकने के लिए यूज़, आई यूज़ नॉन स्टिक पैन टू मेक माई रोटीज एंड पराठा। सो मैं ये यूज़ करती हूँ पराठा वगैरह सेकने के लिए। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड फेबरवेयर। देखिए इसके पीछे ये लगा हुआ है, सो यू कैन ईजिली कीप इट ऑन द काउंटर एंड ये आगे का पोर्शन इसका टच नहीं होगा आपके काउंटर टॉप पे। नेक्स्ट इज़ दिस बिग स्पून। ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बट आई हैव इट, कभी कभार कुछ चलाना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। एंड दिस इज़ मैशर। दिस इज़ अगेन फ्रॉम अ ब्रांड बेटी क्रॉकर। आई गॉट दिस वन फ्रॉम डॉलर ट्री। सो ये है एक मेरे पास। एंड दीज 3 स्पैचुलास। नाउ लेट्स सी सम ऑफ दी चॉपिंग एसेंशियल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले चॉपिंग एसेंशियल्स में आता है चॉपिंग बोर्ड। If you are buying a new one, please invest in one good chopping board. Take either a bamboo one or a wood one. ये मेरे पास प्लास्टिक का है and again my husband bought it 5 years back. अब तो ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है, गंदा भी हो गया है because ये तो डेली यूज़ होता है, but still it is serving my purpose, so I'm not changing it. And it is very essential to invest in some good knives. सो ये मेरे पास 3 साइजेस के नाइफ हैं। ये सबसे छोटा है, ये मीडियम साइज है और ये बड़ा है। एंड पीलर। वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन गुड नाइफ्स तो ये आपको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होंगे। सो वॉट आई डिड इज आई बॉट दिस नाइफ शार्पनर। तो जब भी मेरा कोई नाइफ ब्लंट हो जाता है सो आई यूज़ दिस शार्पनर टू शार्प इट। सो नाइफ बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यू डोंट हैव टू बाय न्यू नाइफ्स एवरी टाइम, जस्ट बाय दिस शार्पनर। And no Indian kitchen is complete without chakla balance. So yeah, this is very necessary in every Indian kitchen to make rotis, parathas or puris. So this is a must have. So yeah, these were some of my kitchen essentials. I hope you enjoyed watching this video. अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ who are looking forward to set up their new kitchen. एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बिकॉज दिस इज न्यू चैनल, इट नीड्स योर लव एंड सपोर्ट एंड बाय सब्सक्रिप्शन आई गेट टू नो दैट you are liking my work, you are liking my videos and it really motivates me to put forward more and more videos for you guys. So yeah, with this let me say you a very good bye, take care, I'll see you with my new one.